بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہاں پہ ابھی ایک مناظرہ ہوگا، مکالمہ ہوگا۔ قادیانی مرزئی مربی کو واٹس ایپ پہ ہم نے سینڈ کر دی ہے لنک، تو جناب انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کریے گا۔ ابھی قادیانی مرزئی صاحب آ ہی رہے ہوں گے۔ یہ لنک میں یہاں پر بھی کر دیتا ہوں، اور کسی قادیانی مرزئی مربی نے کوئی بات کرنی ہو تو اس لنک پر کلک کر کے آ سکتے ہیں۔ جب تک کوئی قادیانی نہیں آتا، کوئی سوال نہیں آتا، تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں جناب فیس بک کے اوپر، اور ایک پوسٹ جو کہ میری پروفائل پہ لگی ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ جی قادیانی مرزئی صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں تو جلدی جلدی آ جائیں۔ جی یہ لنک میں نے شیئر کر دی ہے، اس لنک پہ کلک کر کے آ جائیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، قادیانی مرزئی خلیفہ مسرور صاحب ٹھرک بازی کر رہے ہیں۔ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہی کام یقین مانے اگر کسی مولوی نے کیا ہوتا نا، یہ قادیانی مرزئیوں نے جناب شور مچانا تھا کہ دیکھو یہ بچے بازی کرتے ہیں، یہ مولوی بچے باز ہیں۔ تو یہ ایک آئے ہیں جناب، کون، امیر حمزہ صاحب آئے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام استاد محترم، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کے سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی، اللہ کا شکر ہے۔ ہلو جی ہیلو، آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے آواز۔ جی امیر حمزہ فرمائیے۔ استاد محترم، میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا آپ کے مناظرے کا، کہ ابھی تک مناظرے کا کوئی لنک نہیں آیا۔ میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا، تو بھی آپ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آپ یہ جو بھائی ہیں، لگتا ہے یہ مناظرے کے لیے آئے ہیں، آپ ان سے بات چیت کیجیے۔ میں آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہوں استاد محترم۔ جی دیکھتے ہیں یہ کون ہے جی، میمونہ صاحب یا صاحبہ؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جناب۔ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جناب، فرمائیے جی۔ اور سر جناب میں نے بھی آپ کا وہ دیکھنا تھا مناظرہ، میں بھی کافی دیر کا انتظار کر رہا تھا کہ آج ابھی یہ نا مناظرے کا انتظار تو ہے، میں نے لنک شیئر کر دیا، مرزئی نے کھپ ڈالی ہوئی تھی واٹس ایپ کے اوپر، مجھ سے مناظرہ کرو تو اب لنک تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں، انہوں نے بس کرنا ہوتا ہے، مناظرہ نہیں کرنا ہوتا۔ اچھا یہ اور بھی آئے ہیں، یہ کون ہے؟ ہیلو السلام علیکم جی، متین صاحب۔ متین صاحب جناب آپ بات کریں گے؟ ہیلو او بھائی ٹیکنیکل صاحب بولیں تو صحیح جناب، لگتا ہے یہ وہی ٹیکنیکل ہی صاحب ہی تھے غالباً۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام استاد محترم، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا جی چلیں، مرزئی جب تک کوئی نہیں آتا تو پھر بھائی جی بول لیں آپ۔ ہیلو ٹیکنیکل صاحب کو بولنے تو صحیح۔ ہیلو 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 ٹیکنیکل صاحب آپ نے ڈیبیٹ کرنی تھی۔ ہیلو کون؟ جی جناب بولیے جناب۔ ہیلو ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے سر، سب کی آواز آ رہی ہے۔ اور سب کی آواز آ رہی ہے، ڈرامے بازیاں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ چلیں ان کو ادھر ہی رہنے دیں ابھی۔
चलें जी, अपनी हम बात कर लेते हैं। तो ये देखें इस ठरकी बाबे बुड्ढे की ये हरकतें देखें थे। हाँ जी, ये गोरा चिट्टा चिकना सा कोई बच्चा किसी मौलवी के आगे होता ना, इस तरीके से वो टोरा होता, तो यकीन जाने इन मर्जियों ने मुरब्बियों ने ओए होए होए ओए मौलवी देखो बच्चेबाजियां करते हैं, और मौलवी देखो मदरसों के अंदर बच्चेबाजियां करते हैं। तो ये अपना तुम्हें नजर नहीं आता ये खलीफा है? ओ मर्जियो, मर्जई है कोई? आओ ना यार इधर, किधर दौड़ गया मर्जई मुरब्बी? अभी लिंक भी मैंने कर दी है, अभी तो सामने तो आओ ना यार, कोई बात भी तो करो ना। कौन से मौजू पे बात करनी है तुमने? आओ। अच्छा जी, चलें जी। ये एक जवाब भी मैंने ये तलब किया है, ये 10,000 नए नबी आएंगे, तो इसका भी जवाब अभी तक को नहीं मिला। अच्छा, ये एक पोस्ट लगी है जनाब जवेद गामदी के अकायद व नज़रियात के ऊपर, इस पर भी एक नज़र कर लेते हैं जनाब। जवेद गामदी साहब का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। मीज़ान अलामात क़यामत के सफ़ा 178 के ऊपर ये फरमाते हैं, और फरमाते हैं कि क़यामत के करीब कोई मेहदी नहीं आएगा। ये मीज़ान के अलामात क़यामत सफ़ा 177 के ऊपर फरमाते हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वड्डे मिर्ज़ा जी, मिर्ज़ा सीनियर गुलाम अहमद परवेज समेत कोई भी काफर नहीं है। किसी भी उम्मती को किसी की तकफीर का हक नहीं है। ये इशराक के अक्टूबर 2008 के सफ़ा 67 के ऊपर ये गामदी साहब फरमाते हैं। गामदी साहब फरमाते। अच्छा, ये मिर्ज़ा जूनियर भी यही फरमाता है। मिर्ज़ा जूनियर भी ये कहता है, कादियानी मर्जियों को अहले किताब से बदतर तो ना कहो ना, वो भी तो मुसलमानों का एक फ़िरका है ना। अच्छा जी, आगे जी फरमाते हैं कि हदीस से दीन में किसी अमल या अकीदे का इजाफा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीज़ान सफ़ा 15 के ऊपर। सुन्नतों की कुल तादाद 27 है जनाब, सुन लें जी। और सुन्नत से मुराद वो हदीस को लेते हैं, यानी टोटल 27 ही हदीसें हैं, और इनकी नज़र में कोई हदीस नहीं है। मीज़ान के सफ़ा 14 के ऊपर। दाढ़ी सुन्नत और दीन का हिस्सा नहीं है। मकामात के सफ़ा 138 के ऊपर। इजमा दीन में बिदअत का इजाफा है। इशराक अक्टूबर 2011 सफ़ा 2 के ऊपर। मुर्तद की शरई सज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ ख़ास थी। इशराक अक्टूबर 2008 सफ़ा 95 के ऊपर। रजम शराब नोशी की शरई सज़ा हद नहीं है। ये बुरहान के सफ़ा 35 ता 140 के ऊपर, जो कि फरवरी 2009 का शुमारा था, तो बड़ी गुफ्तगू की है इन्होंने। इस्लाम में फसाद फिल अर्द और कत्ल नफ्स की अलावा किसी भी जुर्म की सज़ा कत्ल नहीं हो सकती। बुरहान के सफ़ा 46 के ऊपर, ये फरवरी 2009 का शुमारा। कुरान पाक की सिर्फ एक किरात है, बाकी किरातें अजम का फितना है। अस्तग़फिरुल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े तौर पे अहादीस हैं कि 7 किरातें या 10 किरातें, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे। और आजकल के ये जो मुल्हिदीन है, एथियस्ट हैं, दैरिये हैं, तो वो भी अपने अपने चैनल्स के ऊपर यही बात करते हैं और इसके ऊपर बड़ा शोर मचाते हैं। वही बात असल में की थी गांधी साहब ने। आगे बढ़ते हैं जनाब। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बाद गलबा दीन की खातर अकदामी जिहाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया जी। चलो जी, मिर्ज़ा कादियानी का भी यही अकीदा है, यानी मिर्ज़े का ये ऊपर के तमाम कायदो नज़रियात सारे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के थे। ये बात ज़हन नशीं रखिएगा। अच्छा जी, ये असल में इशराक अप्रैल 2011 के सफ़ा 2 के ऊपर ये बात की है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम और मर्द औरत की गवाही में फ़र्क नहीं है। चलो जी, नवी सुन लो। बराहीन सफ़ा 25 से लेकर 34 तक ये गामदी साहब ने फरमाया है।
آگے فرماتے ہیں غامدی صاحب زکوٰۃ کے نصاب میں ریاست کو تبدیلی کا حق حاصل ہے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، ریاست بھی آپ کی، یہ شریعت بھی آپ کی گھر کی ہے، جو مرضی کرو دیکھی جائے گی. یہ اشراق جون 2008 کے صفحہ 70 کے اوپر فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی ان کی بخشش ہو جائے گی. اوئے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر. حالانکہ 5 ٹائم ہم نماز کے اندر جناب ان یہود و نصارہ سے براءت کا اعلان کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرماتے ہیں موسیقی فی نفس ہی جائز ہے. ہاں صحیح ہے، اور مجرے کیا کرو، پھر جا کے مجرے کریا کرو جناب، وہ سارے الحمرہ حال، یہ سب وہ شریعت، وہ شرعی کام ہو رہے ہیں نا وہاں پہ. ہیں صحیح ہو گیا بھائی. یار بندہ ویسے مولوی اسی قسم کا ہی چلتا ہے آج کل کے دور میں، جو سہولتیں دینے والا مولوی ہو. او بھائی کوئی میری آواز بھی آ رہی ہے کہ نہیں کسی کو؟ ہیلو. جی شاہ صاحب آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے استاد محترم، بالکل یار اوکے آواز آ رہی ہے. یار امیر حمزہ ایسے ٹیکنیکل قسم دے مولوی تے قوم نو لوڑ ہے یار. جی استاد محترم. ہاں اچھا، تاں ہی میں بھی کہندا سا کیوں ایڈیاں مینواں کڑیاں تے منڈے نسے پھردے نے غامدی دے پیچھے تے مر جاندا ہے جناب مرزا جونیئر اے دے پیچھے. اصل کہانی تے ہوں مینوں سمجھ آئی ہے، وہ تے اندر جو مرضی کرو دیکھی جائے گی. تاں ہی تو وہ جناب مرزا جونیئر بھی کہہ رہا ہے اورل سیکس جائز ہے. رج کے چوپو. اچھا جی آگے. ہاں جی ہاں جی آگے سنیں. اچھا جی موسیقی فی نفس ہی جائز ہے. آگے بت پرستی کے لیے بنائی جانے والی تصویر کے علاوہ ہر قسم کی تصویریں جائز ہیں. واہ بھائی واہ، بلے بلے تیری. یار یقین جانو اے غامدی ہوندا نا وہ مشرکین دے دور دے وچ جنہاں نے تصویراں بنائیاں سن خانے کعبے دے اوتے، بت بھی بنائے سن، تے یقین جانو اے مشرکین نے شاید یہ ہاتھ تے ایمان لے آنا سی. یہ ہاتھ تے انہوں نے ایمان لے آنا سی. جی چلو جی آگے جی. یہ بیمہ جائز ہے جی. بات سود بھی حلال ہو گیا جی. سود حلال کری جاؤ پتر، ہر چیز نو حلال کر دیو. اشراق جون 2010 صفحہ 2 کے اوپر. یتیم پوتا دادے کی وراثت کا حقدار ہے. مرنے والے کی وصیت 1 ثلث تک محدود نہیں. وارثوں کے حق میں بھی وصیت درست ہے. واہ بھائی واہ، بلے ہو تیری. وراثت کو حالانکہ آدھا علم کہا گیا، آدھا دین آدھے دین کا علم وراثت کو کہا گیا ہے، اور وہ وراثت کے مسئلہ ہی اس نے قرآن اور حدیث کا الٹ کر دی ہے. اشراق مارچ 2008 صفحہ 63 کے اوپر. سور کی نجاست یعنی خنزیر کی نجاست صرف گوشت تک محدود ہے. اس کے بال، ہڈیوں، کھال وغیرہ سے دیگر فوائد اٹھانا جائز ہے. اوئے ہوئے 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 یار میر حمزہ مجھے اب آئی ہے سمجھ. یہ جی استاد محترم. یار اب آئی ہے مجھے سمجھ کہ یہ گورے جو ہیں یہ جناب سور کی پپیاں کیوں لیتے یار؟ انہوں نے کدھر غامدی دا فتوا پڑھ لیا ہی. جی ہاں استاد محترم. ٹھیک ہو گیا. استاد محترم 2 منٹ اجازت دیں، آپ کو ایک چھوٹی سی خوشخبری سنانا چاہ رہا تھا میں. نہیں تو کوئی لطیفہ سنا، مینوں خوشخبری کی سنانی ہے. ہاں بولو. استاد محترم میری یونیورسٹی کے 5 لڑکے ہیں جو مرزے کو بڑا سنتے تھے. الحمدللہ ان کو کافی بتایا کہ ہفتہ 1.5 محنت کے بعد سب نے مرزے پہ لعنت ڈال کے اپنے اہل سنت و جماعت کی طرف دوبارہ واپس آ گئے ہیں، اپنے بریلویت کی طرف. واہ جی واہ، ماشاءاللہ. لعنت پاک دیتی ہے نا. قادی آپ کے مناظروں کی برکت ہے. وہ مناظرہ آپ کا بالکل غور سے میرے پاس رات کو اسپیشل آتے تھے
हमारा इधर से करीबन कुछ 15 किलोमीटर सफर करके आके आपका मुनाजरा सुनते थे इस बारे पे। हफ्ता आज डेढ़ भी मेहनत एक के बाद आज भी इन्होंने उस पे लानत आज डाल भी दी है। आज भी एक इल्मी किताबी चूजा आया था व्हाट्सएप के ऊपर, बड़ा जी दौड़ा दौड़ा उस्ताद। आया ना, बड़ा दौड़ा दौड़ा आया है, आंदा मौलवी मुफ्ती जाहिल, और दो तीन ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ अच्छा ਸਾਹ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਯਾਰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਏ मिर्जा जूनियर ते मिर्जा सीनियर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से बुग़्ज़ और अनाद रखते हैं, तो वो वाली हदीस, वो देखो इब्ने हजर अस्कलानी की, ये देखो सफ़ा, ये देखो वो बात इन्होंने भी की है। मैं क्या जरा मैनू इबारत पढ़ के तो सुना जरा, हैं वो तो अरबी की इबारत सी, हैं मैं क्या इनू जरा मैनू पढ़ के सुनाई। अच्छा मैनू समझ आ गई कि यह गल की लिखी है, हालांकि वो दो लाइना उत्ते अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने कहा कि बाज लोगों ने ये बात कही है, उन्होंने मुफ्ता बही कौल यानी उलमाए कराम का तरीका ये होता है, मुफ्ता बही कौल को पहले वो जिक्र करते हैं, जो शाज अकवाल होते हैं उनको बाद में लेके आते हैं कि बाज लोगों ने ये कहा बाज ने ये कहा। अच्छा वो शाज कौल था, अब उसके अगर तो वो उसको शायद कोई अरबी आती थी या वो चकमा दे रहा था, दो में से एक काम तो जरूर था। जब मैंने उसको कहा ना इसको पढ़ के सुना जरा, दौड़ गया भाई तितर। तो मैंने कहा तू मेरे साथ डिबेट कर, तू है इंज नहीं मेरा बच्चे इंज नहीं, तुसी सिर्फ तुहाडे बाबियां ने ही दसिया जाके गालां गूलां कड्डो, ते डिबेट उन्होंने कहा कि जदों कोई डिबेट आस्ते मौलवी सद्दे ते कह दिया करो अम्मी मार दी है, डिबेट नहीं करनी है घर बह के जो मर्जी जन्ने वाह। अच्छा बहरहाल जी चल यार छड्ड दफा मार। अच्छा जी ये आगे जी ये इनकी सुनने जरा, ये गामदी साहब क्या फरमाते हैं। सूर की निजासत सिर्फ गोश्त, अच्छा हो गया। सुन्नत सिर्फ दीन इब्राहिमी की वो रिवायत है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हैसियत से जारी फरमाया, और ये कुरान से मुकद्दम है। अच्छा जी ये कुरान से मुकद्दम है। अच्छा सुन्नत इब्राहिमी, ओए तो बड़ी वड्डी गल कर गया यार, ओए तो मैं इबारत ते गौर हून कीता है। अच्छा सुन्नत सिर्फ दीन इब्राहिमी की वो रिवायत है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हैसियत से जारी फरमाया, और ये कुरान से मुकद्दम है। अगर कहीं कुरान का टकराव यहूद नसारा की फिक्र अमल से होगा तो कुरान की बजाय यहूद नसारा के मुतवातर अमल को ओए मीज़ान के सफ़ा 14 के ऊपर ये बात कही है गामदी साहब ने, यानी ये यहूदो नसारा की वो बाइबल को और उनके मजहब को ये बरहक कह रहे हैं और उसको मुकद्दम कह रहे हैं और उसको अफसल कह रहे हैं, यानी दीन इस्लाम का और कुरान का वो सनवी हैसियत है। ओए अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। औरत मर्दों की इमामत करा सकती है, वाह बल्ले ओ बल्ले, नज़ारे मजे हैं, ओरल सेक्स यार यकीन जान औरत जो अगे होएगी वो सजदा करती होएगी, पीछे गामदी साहब खलोते होंगे, अगे इन्होंने भावे पता नहीं बाजी खड़ी की होए, की नज़ारे होंगे। उस्ताद मोहतरम एक बात अर्ज करना चाहूंगा यहाँ पे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो तवालत में थी उस दौर में अगर गामदी साहब होते तो गामदी साहब की तो क्या वाह होनी थी उस्ताद मोहतरम। मैं कहना उन्होंने उत्थे भी कोई शिक कढ़ लैनी सी, उन्होंने कहना सी कि नहीं नौजो, उन्होंने कहना सी नहीं बाबिया नाल ना बाबिया नाल ना करो, नौजवान ते कर सकते हैं जायज है। कौमे लूत ने बड़ा खुश होना सी, वाह भाई रिलीफ मिल गया जी, इंज दी ते सानू जायज करार दिया इसमें। हाँ जायज रिलीफ देनी है, बस हर काम दे रिलीफ दे दियो, ओही वड्डा मुफक्किर है ते ओही जनाब बड़ा ए बेहतरीन स्कॉलर है इस दौर दा, हां जी जेड़ा रिलीफ देंदा रवे इन्हां नू कौम नू। अच्छा जी आगे सुने जी। दुपट्टा हमारे यहाँ मुसलमानों की तहजीबी रिवायत है, इसके बारे में कोई शरी हुक्म नहीं है। ले नवी सुन लो, लख दी लानत यार की बंदा ही यार बदबला। अच्छा दुपट्टे को इस लिहाज से पेश करना कि ये शरी हुक्म है, इसका कोई जवाज नहीं। माहनामा इशराक सफ़ा 47। वाह बल्ले ओ बल्ले, वो कि मैं कहता हूँ एक बाल बाहर आ जाए ज़हरा का,
सूरज तलू तक ना हो, ओए होए होए होए, वो पर्देदार खवातीन, वो उम्महातुल मोमिनीन जिनकी कुरान उनके पर्दे की कसमें उठाए, जिनके पर्दों की, जिनकी तहारत की, जिनकी पर्दा ततहीर की कसमें उठाए कुरान। तो दुपट्टा मारे मुसलमानों को तहजीबी रवायत ही नहीं है जी, नवी सुन लो। अच्छा, वो मिर्ज़ा कादियानी ने भी तो यही कहा था ना, वो कहता था जाओ जी मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूँ। और नच्छो नुसरत जहां बेगम जब वो बाजार के अंदर औरत मार्च कर रही थी, मीर हमदा पता ही ना, जी उस्ताद मोहतरम। वो एक मर्जई ने आके क्या कि मिर्जा जी, मिर्जा सीनियर साहब, आपकी बेगम नुसरत जहां बेगम वो औरत मार्च कर रही है बाजार के अंदर, तो रोके तो कहने लगा नहीं जी जाओ जी मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूं। ये वो ही है मर्जइयों वाले वड्डे मिर्जा जी की चाल के ऊपर चल रहे हैं। हाँ जी, ये गामदी साहब, मिर्जा जूनियर, बस एक लाइन एक ही है, कहानी एक ही है। अच्छा जी, आगे 24 नंबर है जी, मस्जिद अक्सा पर मुसलमानों का नहीं, इस पर सिर्फ यहूदियों का हक है। लो सुन लिया, अब गल मुकदी मुक गई, इत्थे मुक गई है भाई। मुसलमानों देख लो, ये इशराक जुलाई के 2003 मई जून 2014, हाँ, बगैर नियत अल्फाज तलाक कहने से तलाक वाक़ई नहीं होती, बगैर नीयत के। लो जी नवा फतवा सुन लो, बगैर नीयत के, इतने नीयत का दखल हो गया। हालांकि तलाक एक चीज़ ही ऐसी है कि मुंह से लफ्ज़ निकले और नीयत का अमल दखल है ही नहीं, वो नहीं देखा जाएगा तेरी नीयत में क्या था, तेरे दिल में क्या था। शरीयत कहती है बस औरत को तलाक वाक़ई हो गई है, वो नीयत अपनी अल्लाह पाक को बताना तू जाके। दुनिया का ज़ाहरी शरई हुक्म ये है कि औरत को अलग कर दिया जाए मर्द से। अच्छा जी, ये गांधी साहब के आपने चुटखले सुन लिए हैं और मिर्ज़ा सीनियर के नक्शे कदम पर चलते हुए जो इन्होंने फरमाया है वो सब कुछ आपने सुन लिया। ये एक पोस्ट मैंने लगाई थी अपने फेसबुक के ऊपर, तो सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लीजिए। अब आते हैं वापस आप हजरात की तरफ। अच्छा जी, कौन बैठा है जी? उसामा फीस बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शाह जी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है जी। जी उसामा फरमाइए। जी शाह जी, ये जो आपने हामदी साहब के हवालाजात वगैरह पढ़े हैं, तो एक बात थोड़ी और वाज़ेह कर दूं कि गामदी साहब के नज़दीक सुन्नत का वो मतलब नहीं है जो मुसलमानों के यहाँ राइज है, यानी नबी अलैहिस्सलाम का तरीका या नबी अलैहिस्सलाम का अमल, या वो बात जो नबी अलैहिस्सलाम के सामने हुई और आप खामोश रहे। गामदी साहब कहते हैं कि जो भी गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं या जो दीन इब्राहीमी में तरीका राइज रहा है वो सुन्नत है असल में। तो वो सुन्नत की तारीफ मुसलमानों से अलग करते हैं, यानी जैसे कुरान मजीद की तारीफ। सुन्नत की डेफिनेशन ही बदल दी है ना, डेफिनेशन। जी जी, वो मिर्ज़ा साहब की तरह ना, जैसे मिर्ज़ाई कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं कलमे में, तो ये गामदी साहब जो हैं ये सुन्नत से मुराद बाकी जो पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम हैं उनके तरीके को लेते हैं। ये असल में उसामा ये बड़ा पुराना तरीका है। ये तरीका वो है कि यहूदो नसारा ने इस्लाम की तारीख को मिटाने के लिए और इस्लाम को मसख करने के लिए जो इन्होंने शैतानी एक तरीका वारदात रचाया था, वो ये था कि इनको इनकी हिस्ट्री को बदल दो, इनको पता ही ना चले कि क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हुआ उसको। अब इन्होंने क्या किया, अब दुनिया के नक्शे को देख लें, आप दुनिया का नक्शा उठा के देख लें। अब कोई भी आप नक्शे के ऊपर मिस्र को ढूंढना, आज किसी ये स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर वो नहीं तलाश कर सकता कि मिस्र कौन सी जगह पे हो, यमन कहाँ पे है उसको पता ही नहीं है, शाम तलाश करना चाहेंगे मिलेगा ही नहीं आपको, शाम कहाँ पे है। यानी जिनका तारीख इस्लामी के अंदर जिन मुल्कों का जिक्र था या अहादीस के अंदर या कुरान के अंदर जिनका जिक्र है, उन्होंने उसके इंग्लिश नाम वजह करके या अलग से कोई नाम ना वो मुतारफ करवाए ताकि वो ये मुसलमान जो हैं इनसे
وہ تاریخ اور ان کی حقیقت اور ان کی اصل جو ہے نا الجھ کے رہ جائے, دھندلی ہو جائے, ان کو پتہ ہی نہ چلے. جی جی ایسے ہی. ان کو ارطغرل غازی ڈرامے جتنے بھی دکھاؤ, جتنے بھی ان کو ترکی ڈرامے دکھا لو, ان کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر جتنے اب ملکوں کے نام لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی مسلمانوں نے فتوحات کی اور مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا اور اسلام کا تشخص پیش کیا. لیکن اب ان ملکوں کو اگر یہ ہمارے آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ ورلڈ میپ کے اوپر تلاش کرنا چاہے تو ان کو ملنے نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ان کو. پھر ایک اور جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کیا, جو شخصیات تھی اسلامی شخصیات یا جو جرنیل تھے ان کو بھی انگلش کے اندر متعارف کروایا, ان کے نام خود انہوں نے رکھے. ہاں جی, اب جتنے بھی جنگجو گزرے ہیں, محمد بن قاسم ہیں, خالد بن ولید ہیں, اچھا بڑے بڑے کیا ٹیپو سلطان ہیں کیا گزرے ہیں جناب, نور الدین زنگی ہیں, صلاح الدین ایوبی ہیں, وغیرہ وغیرہ اور بڑے بڑے جنگجو جو گزرے ہیں جنہوں نے ایک کام کیا, یعنی اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا اور فتوحات کی. اچھا اب ان کو آپ ہسٹری کی بکس کے اندر اٹھا کے دیکھیں, ان کے نام ہی کچھ اور ہیں. اب یہ تھی, یہ سازشیں ہیں. بات چلی ہے یہ غامدی صاحب سے اور مرزا سینئر صاحب سے چلی ہے کہ مطلب اپنی تشریحات, وہ اپنی تشریحات کا مطلب یہ ہے کہ دھندلا جائے, یہ مذہب دھندلا جائے, پتہ ہی نہ چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہاں جی, جھوٹ, وہ کہتے ہیں نا جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنا شروع کر دیں. یہ گیم ہوئی ہے, یہ کہانی ہے. جی اسامہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی حضرت ایسا ہی ہے جیسے وہ ایک فیس بک کے اوپر پوسٹ ایک دوست نے کی تھی کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جو تصویر برٹش میوزیم کے اندر انہوں نے لگائی بھی ہے انگریزوں نے, تو اس کے اندر ان کی داڑھی بھی ہے اور انہوں نے بالکل اسلامی حلیہ جو ہے اپنایا ہوا ہے. لیکن آج کل جو ہمارے ہاں ان کی تصویر جو ہے وہ شو کی جاتی ہے, اس کے اندر جناب وہ سکھوں کی طرح اور ہندوؤں کی طرح بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر اور جناب داڑھی مڈا کے, ہاں 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 بالکل بالکل بالکل, یہ سازشیں ہوئی ہیں نا, یہ ورلڈ وائڈ سازشیں ہیں. ان کو کم از کم مسلمانوں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ سازش ہوئی کیا اور کیسے ہوئی. اب یہ دیکھیں سازشیں اب بات چلی ہے سازش سے, تو تھوڑا سا اس کے اوپر اور تھوڑی سی روشنی ڈال لی جائے. پہلے یہ نیچے آئے ہیں یہ ٹیکنیکل متین صاحب, ہیلو بولیے بھائی آپ کون ہیں؟ ہیلو, آپ کے نیٹ کا کوئی ایشو ہے میرے بھائی؟ لگتا ہے یہ پتہ نہیں, اب مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے, ڈیبیٹ کرنے ہیں یا ہیلو, آپ کے نیٹ کا ایشو ہے میرے بھائی, اپنا نیٹ درست کیجئے پھر آئیے آپ. سید صاحب آئے ہیں, یہ سید صاحب ہیں شاید. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سید سر جی فرمائیے, کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ تو پاکستان کے ہیں تو قادیانیوں کے لیے تو آپ ہیں سرکاری مسلمان. ہم ہندوستانی مسلمان کے ساتھ تو یہ جملہ نہیں جوڑ سکتے وہ لوگ. لیکن انگریزی حکومتوں کے تحت چندہ کھانے والے, ان کے ویلفیئر کا پیسہ کھانے والے قادیانی خلفاء, یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ آپ تو سرکاری مسلمان ہوئے, ہم لوگ پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ ویلفیئر کا پیسہ کھاتے ہیں, چندے کی رقم کھاتے ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ چندہ تو بڑا ٹکا کے کھاتے ہیں. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے چندے, ایک منٹ سید سر, چندے کے لیے تو یہ سارا اس بیچارے نے رنڈی رونا, وہ تو روتا رہا, وہ کہتا میں ہوں نا. اب وہ چندہ جب اس کا ختم ہو گیا نا, وہ 50 کتابیں لکھنے کے نام پر بھی جو اس نے وہ کروڑوں روپیہ گڑپ کیا تھا, تو اب بعد میں اس کو وہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. اس نے کہا مجھے نا وہی نازل ہوئی ہے کہ میں قبرستان بناؤں, انہیں کہا اس کے کفن بھی چوری کرو, ان کے انہوں نے جان لگیا بھی نہ, انہوں دی تنبیہ لا کے یہ نہ میں انہوں بھیجاں گا, انہوں مرزائیاں نو عقل ہونج نہیں ہونی. انہیں کہا منوں نہ وہی نازل ہوئی ہے کہ میں ایک قبرستان بنان لگا ہوں, یہ دفن ہونا سے نہ پہلے چندہ جمع کراؤ, تے اے جڑی ہے نا جنت ہوئے گی.
हाँ जी, ये बहिश्ती मकबरा है, तो क्यों भाई उसामा, ऐसा ही है कोई? हाँ जी 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 हजरत, वो आप भी अगर वो पैसे ना दें हाँ, तो उनको दफन नहीं किया जाता अच्छा और वो दफन वसीयत करनी पड़ती है। वसीयत अच्छा, करनी। ये लोग जो यूरोप में कादियानियत छोड़ करके मुसलमान हो रहे हैं, तो उस पर ये कमेंट लिखते रहते हैं आपके स्ट्रीम पे या ज़िया भाई के स्ट्रीम पे, कि तुम लोग अपना पासपोर्ट कब छोड़ रहे हो, पासपोर्ट से मोहब्बत और जमात से नफरत। यानी उनका ये कहना है कि पासपोर्ट कादियानियत ने आपको पासपोर्ट दिला दिया, आप इतना पैसा कमाने वाले लोग हो गए, तो जमात से नफरत किस बात की? क्या मकसद है उनका ये इस तरह की बात करने का, कि आप मतलब ऊपर एहसान पासपोर्ट समझ नहीं आई। यानी पासपोर्ट से मोहब्बत है, यानी जमात आपने छोड़ दिया, कादियानियत को छोड़ दिया, तो पासपोर्ट भी छोड़ दो, वापस पाकिस्तान आ जाओ। ये कौन यानी कहता है? कादियानी, ये कमेंट लिखने वाले लोग होते हैं जो आपके स्ट्रीम पे कादियानी लोग आते हैं, नीचे कमेंट वो कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए कर रहे होते हैं जिन्होंने यूरोप में रह के कादियानियत छोड़ी है। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हें जमात से इतनी नफरत हो गई है और उसके दिलाए हुए पासपोर्ट से इतनी मोहब्बत है कि तुम वहीं टिके बैठे हो, क्यों नहीं छोड़ देते यूरोप को? तो हाँ, उधर अब समझ आई। ਤੇ यूरोप अमरीका अफ्रीका ਤੇ ये ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਰਜ਼ਈਓ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ क्यों ਛੱਡਣ ਲੋ? तुमने उन लोगों की जेबों को काट के तो ये ड्रामेबाजियां रचाई हैं, वो अपने पैसे पे उधर बैठे हुए हैं, तुम्हें वो क्या कहते हैं मरदइयों के प्यो का थोड़ी है ये जर्मनी कनाडा इंग्लैंड जो भी। हाँ, पासपोर्ट से नफरत तो मोहब्बत क्यों? अच्छा जी, ये अच्छा, सलमान शहजाद एक साहब आए हैं, अस्सलाम नहीं, वालेकुम जी। एक दो बात और मुफ्ती साहब, कमेंट में और भी चीजें वो कह रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमेशा वो कोट करते हैं कि बाद में जो उलमाए दीन होंगे वो सूअर और खिंजीर और बंदरों की तरह होंगे। तो ये जो वो हदीस मिर्जा है, कादियानी की बात थी ना, वो मिर्जा हाँ कादियानी की हाँ, बात। वो यही मैं कहता हूँ उनसे कि ये हदीस तो मिर्जा कादियानी पे हर बहर सही मिर्जा साबित हो कादिर जाती है। खलीफा मसरूर के बारे में, मिर्जा ताहिर के बारे, मिर्जा नासिर के बारे, बशीरुद्दीन महमूद के बारे, हकीम नूरुद्दीन के बारे, ये तो उनके बारे में है ना, बाकी वो बंदर सुवर खंदीर हैं, आसमान के नीचे अच्छा, बदतरीन एक मखलूक मौलवी। आजकल हमारे हिंदुस्तान में एक हिंदी में लोग मैसेज लिख करके खूब एक दूसरे को फॉरवर्ड किए हुए रहते हैं कि उलमाए दीन और मौलवियों, इन लोगों ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये कहते हैं कुरान को समझना है तो 12 या 13 उलूम पे दस्तरस हासिल हो तब समझा करो। तो कुरान तो ऐसी किताब है, वो तो हमें खुद पढ़ के समझना है। ऐसे लोगों के बारे में क्या जवाब आपका? ये असल में मामला ये है कि कुरान जो ये बात करता है ना, ये तो देखे सारे ही करते हैं, ये असल में बात करते इच्छिए दहरिए, ये दहरियों का है असल में ये इतराज, जिसको रिपीट करता है मिर्जा कादियानी भी, बड़ा मिर्जा और छोटा मिर्जा भी, ठीक है, और इनके फॉलोअर और हमायती, ठीक है। ये असल में इच्छिए दहरियों की ये बात है और गैर मुसलमानों का ये इतराज है। तो भाई सच्ची बात है ना, कुरान अल्लाह का कलाम है, आफाकी कलाम है, इतनी जल्दी समझ में तो वो नहीं आएगा ना। अगर ये खुद ही कुरान समझने समझाने का मामला होता तो वो फिर कौम को किसी एक जगह इकट्ठा किया जाता और किताब आसमान से दे दी जाती, ये लो जी खुद ही पढ़ो, खुद ही समझो, खुद ही इसमें से मसले अखद करो, खुद ही जिंदगी गुजारो। तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 23 साल तक कौम को वो कुरान समझाया, तो वो तो फिर जरूरत तो ना रही, नबी की कोई जरूरत तो ना रही। तो यही सलूक कुरात ज़बूर इंजील के साथ भी होता कि कौम को एक जगह पे इकट्ठा करके वो किताबें उनको दे दी जाती, ले लो जी खुद ही पढ़ो, खुद ही समझो। तो ऐसा हुआ नहीं। नबी का जो मरकजी मकसद ये होता है कि वो अल्लाह के कलाम को समझाए, कुल्ली तौर पे, अमली तौर पे, फेली तौर पे कौम को समझाए। जी, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। यहाँ तो छोटी छोटी बात ये है कि जो हमारी मादरी ज़ुबान है उर्दू या हिंदी, इसको सीखने के लिए हम अपने पास एक टीचर रखते हैं ताकि वो हमें ये ज़ुबान सिखा सके। आप कुरान को कहते हैं कि खुद से पढ़ लेंगे, खुद से समझ लेंगे, ये कैसे मुमकिन है जो हमारी ज़ुबान नहीं है? अब तर्जुमा पढ़ करके, तो आज मेरी बहस एक इंसान से इसी तरह से हो रही थी, हमने कहा कि चलिए आपको खुद पढ़ के समझना है तो सिर्फ इल्म की तारीफ कर दीजिए। इल्म किसको कहते हैं? पूरे 2 घंटे में वो इल्म की तारीफ बयान नहीं कर सके। इल्म कहते किसको? कभी नॉलेज को तो कभी एजुकेशन को। हमने कहा कि इसको नहीं कहते हैं इल्म। तो 2 घंटे के बाद वो सरेंडर कर गए। ये हालत इनकी हो रखी है और ये कहते हैं कि कुरान को खुद से पढ़ेंगे और समझेंगे। और अल्लाह का
اور اللہ کا کرم جی یہ ہے کہ 20-25 قادیانی جو ہے ان کو میں نے اپنے واٹس ایپ پہ ایڈ کر رکھا ہے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہوں، آپ کی اسٹریم کا لنک شیئر کر دیتا ہوں اور ضیاء بھائی کے اسٹریم کی لنک شیئر کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے وہ لوگ ٹکے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے واٹس ایپ گروپ چھوڑا نہیں ہے، سنتے ہوں گے. اللہ کرے ان کے دل پہ بات اثر کر جائے، دعا کیجیے گا. قرآن جو کہتے ہیں کہ خود ہی پڑھو تو خود ہی سمجھو، صرف ایک آیت، زیادہ دور نہیں میں جاتا. یہ میرا آج کی سٹریم کا ایک سوال ہے ایسے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. سارے جتنے بھی غیر مقلدین ہیں وہ مانتے نہیں ہیں جناب، کسی فقہ کو نہیں مانتے اور کسی کی تقلید کے قائل نہیں ہیں، اور عمومی طور پہ یہ اعتراض کرتے ہیں قرآن کو خود ہی پڑھو تو خود ہی سمجھو، صرف ایک آیت. اور اس قسم کی جو ہے نا 10 آیات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ کبھی بیٹھیں گے تو پھر معاملہ حل کریں گے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس میں ہے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں. جو متعلقہ عورتیں ہیں وہ 3، ان کی عدت بتائی گئی کہ 3 قروء انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اس گھر کے اندر. ان 3 قروء سے مراد کیا ہے؟ بس یہ ایک میرا سوال ہے، ایک معصومانہ سوال ہے، وہ 3 قروء سے کیا مراد ہے؟ آیا اس کے اوپر یہ ایام طہر مراد ہوں گے یا ایام حیض مراد ہوں گے؟ کیونکہ عورت کے اوپر ایام طہر بھی آتے ہیں، یعنی پاکی کے ایام بھی آتے ہیں، اور اس کے اوپر ایام حیض بھی آتے ہیں، ناپاکی کے ایام بھی آتے ہیں. تو یہ اس قروء سے مراد اللہ کی منشا کیا ہے؟ اگر یہ میرا سوال کسی کو سمجھ آ گیا تو یقین مانیے وہ ایسے لوگوں کو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یا اپنے دل کے اندر ہی کہہ دے گا کہ واقعی یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں خود ہی قرآن پڑھو تو خود ہی سمجھو، تمہیں کسی کی کوئی تقلید کی ضرورت نہیں، کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں، کوئی علوم اور فنون تمہیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ سوال اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرزا جونیئر یا اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ صحیح کہتے ہیں جی قرآن خود ہی سمجھو تو خود ہی کرو، تو اس کا پھر جواب مجھے بھلے آج کی سٹریم میں دے دیں یا میرے ساتھ ڈیبیٹ کر. ایک سوال ہے بس، اس صرف ایک آیت کے بارے میں لفظ قروء کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہوگا. چلیں جی سید سر اور بھی بات کریں گے آپ؟ جی نہیں بس ہو گئی. جزاک اللہ. یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں میمونہ صاحب جی. السلام علیکم جی. آپ کے نیٹ کا ایشو ہے، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، آواز نہیں آ رہی. میمونہ صاحب آپ کی آواز آ نہیں رہی، کوئی نیٹ کا ایشو ہے. آپ کئی دفعہ تشریف لائیں لیکن ہر دفعہ آپ کا نیٹ کا ایشو ہوتا ہے. اچھا یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے بابا جی آپ بات کر لیں. السلام علیکم بابا جی، آپ کے بھی نیٹ کا مسئلہ ہے. اجاز بھائی آپ بات کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی السلام. یہ جو بھائی بول رہے تھے نا کہ خود پڑھو، خود پڑھنے والے کو بندہ یہ بتائے کہ ڈاکٹری کی تعلیم اگر بندہ میرے جیسا بندہ 100 سال کتابیں لا کے گھر پہ اکیلا ہی پڑھتا رہے تو اس سے کوئی آپریشن تھوڑی کرائے گا، اور جو کرائے گا تو وہ تو سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جائے گا. بھائی یہ علم ہے، یہ دین ہے، دین کو پڑھنا پڑتا ہے، استاد پکڑنا پڑتا ہے، بغیر استاد کے یہ علم نہیں سمجھ میں آتا. خدا کے بندو تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہو. شاہ جی شیطان نے بھی جب اس کو جنت سے نکالا گیا نا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ایسے ایسے فتنوں میں ڈالوں گا، ایسی ایسی بدعتوں میں ڈالوں گا کہ قیامت کے قریب ایسی بدعتوں کے اندر ڈالوں گا کہ وہ عبادت سمجھ کے کریں گے.
اور یہ ہم سے وہ توقع کر رہے ہیں، یہ جو شیطان کے چیلے ہیں نا، جو بولتے ہیں خود پڑھو، وہ خود پڑھے ہیں، کچھ نہیں بھائی حاصل ہوتا، استاد پکڑنا پڑتا ہے۔ اگر تم بالکل لوگ بولتے ہو نا خود پڑھو، تو اس کا مطلب کہ تمہاری اماں نے بھی یہی پھر تمہیں بولا ہوگا، پتر اپنا ابا خود ہی لبو، مینوں نہیں جے پتا۔ ہاں اجاز صاحب، یہاں پہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے کہ وہ یہ تو مرزا جونیئر بھی تسلیم کرتا ہے نا اس چیز کو کہ اسلام کی سب سے پہلی جو درسگاہ تھی، سب سے پہلی یونیورسٹی، وہ ہے صوفہ، جس کے ہونہار شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بھی دیگر صحابہ جو تھے، اس یونیورسٹی کے اس پہلی اسلام کی درسگاہ کے وہ طالب علم تھے۔ اچھا، وہاں صفا جو درسگاہ تھی اس میں وہ کیا کرتے تھے؟ بس یہ بھی سوال ہے، یہ بھی خود ہی قرآن پڑھو تو خود ہی سمجھو والے لوگوں سے یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ باتیں کیا کرتے تھے؟ وہ باتیں کرنے کی کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی وہ درسگاہ تھی؟ استغفر اللہ، یہ سوچا کریں، کیوں نہیں سوچتے تم لوگ یار؟ تمہاری عقلیں معوف ہو گئی ہیں کیا؟ اچھا، یہاں پہ ارشد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کب سے۔ ارشد صاحب آپ بات کر دیجئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شاہ جی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، جی فرمائیے۔ میں سن رہا ہوں، اصل میں یہ سارے جتنے بھی بندے ہیں نا، یہ فرقے جو نئے نئے اٹھ رہے ہیں، ان کا کام ہے کہ بندوں کو سیل کر دو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کر دو اور ان کو گمراہ کرو۔ مطلب ہے کہ جو اسلام کہتا ہے، جو ریسٹرکشن لگاتا ہے، اس چیز کو ہٹا کر یہ اپنا مطلب ہے کہ اس بندے کے اپنے ذہن سے سوچو۔ مطلب ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کو خود پڑھے گا تو وہ اپنے ذہن سے تشریح کرے گا، حالانکہ ذہن سے تشریح نہیں ہوتی، اس کے سیاق و سباق سے تشریح ہوتی ہے۔ اور اس پر قرآن پاک کو، آیتوں کو سمجھنے کے لیے جو بہت اچھی کتاب ہے، میں کافی دفعہ پڑھ بھی لو چکا جی ایک منٹ جی، رکیں جی، نمی سن لو جی۔ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار بھی الہامی درسگاہ ہیں، لو سن لیا جی۔ بھائی جی مربی جی آؤ نا یار، کال کرنا یار مربی، یہ لو یہ لنک کیا ہے، اس پہ کال کرو، ایسے مزہ تھوڑی آنا ہے، ایسے نہیں مزہ آنا جی۔ مربی جی ادھر آؤ جی۔ اچھا جی چلیں جی، ارشاد صاحب بات کیجئے۔ ہاں جی ارشد، وہ سر سب سے مفتی احمد جار صاحب کی کتاب ہے حلم القرآن جی خیال ہے میرے دوست احباب اگر یہ اس کو نوٹ کر لیں اور یہ پڑھیں تو اس میں سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور وہ بہت اچھی انہوں نے سلیس اردو میں اور بڑے اچھے انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے دوست احباب سے یہی مشورہ ہے کہ اس کتاب کو لازماً پڑھیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی بس یہ علم القرآن ہے، علوم القرآن کے اوپر بہت سی کتابیں ہیں، ایک کتاب نہیں، گوگل پہ ابھی سرچ کیجئے تو جناب آپ کو کثیر کتابیں مل جائیں گی۔ اچھا معاملہ یہی ہے کہ کسی نے ماننا ہو تو پھر ہے نا جی۔ یہ میں ٹائٹل پیج دکھا دیتا ہوں جو ابھی آپ نے کتاب کا ذکر کیا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، نیٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گی علم القرآن، ٹھیک ہے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، تو یہ آپ کو یہ نیٹ کے اوپر آپ کو مل جائے، یہ پی ڈی ایف میرے پاس رکھی ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ کتنے علوم اور فنون کی ضرورت ہوتی ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی جی بالکل۔ اچھا ارشد صاحب کوئی اور بات کریں گے کیونکہ اور بھی کال رہے ہیں؟ نہیں سر، آپ اور کال میں بڑی مہربانی، اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سٹریم چھوڑ کے یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں تاکہ نئے آنے والوں کو موقع ملے۔ بابا جی آپ بات کر لیں پھر۔ بابا جی آپ کے نیٹ کا ایشو ہے یار، آج آپ کال لگتا ہے نہیں کر سکتے، آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں، آج سنیں بس، جزاک اللہ۔ تشریف لائے ہیں سید سمر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
यार ये इजाज़ साहब मेरी आवाज़ क्लियर है, बोलिएगा ज़रा। शाह जी आपकी आवाज क्लियर है, इन लोगों की आवाज नहीं आ रही बस। अब वही नेट उस्ताद के कोई मोहतरम इशू आपकी चल रहे हैं। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी जी, वो ना असल में कुछ लाइट के भी प्रॉब्लम बन रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, तो वो साथ साथ नेट का भी कोई इशू बन रहा है, मुझे ये लग रहा है। तो आगे आए हैं अज़कान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शाह साहब, क्या हाल है उस्ताद जी मोहतरम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए जी। शाह साहब वो तस्वीर आपने जो दिखाई वो मिर्जा मसरूर की, वो चस्के बड़े ले रहा है उसमें। हाँ हाँ, वो देखे ना, वो उसकी गालों को जनाब कैसे छू रहा है, ओए होए। और उसकी आंखें जरा देखें, आंखें हाँ हाँ देखें हाँ ऐसी मस्त मस्त, वो देख तो सही यार, ओए होए। हाँ। शाह जी वो मिर्जा ही क्या जो ठरकी ना हो। घर की ना हो। तो इधर आओ बेटे, बड़े चिकने लग रहे हो, तो हाँ टच जी कर लो जरा। यार, कसम वाली गल जे, अगर ना खुदा न खासा अल्लाह ना करे किसी मौलवी ने अगर इंज कीता हुंदा और खुदा न खासा किसी मरजई दे ढाए और तस्वीर चढ़ जांदी, ओए होए होए जो रौला पाना सी इन्हां ने, रे रब दा ना। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕੀ ਬੱਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? नहीं आहो अच्छा चेक कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ यार, ये एक ये आए हैं शाह साहब, दोबारा आए हैं शाह साहब जी, बोल लें जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, बोलिए। ये एक आईडी आई है नीचे काशिफ नाम की, लगता है ये कोई फेक आईडी है या क्या मसला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शाह साहब क्या हाल है, ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाइए। नहीं जी ये फेक आईडी नहीं है, ओरिजिनल है। मेरा नाम काशिफ है, मेरा ताल्लुक भी चुविंडा से है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ जी, तो मैं असल में ना वो आपको असल में काशिफ भाई, ये तस्वीर लड़की की लगी है, इसको ना थोड़ा सा मेहरबानी चेंज कर लें आप। चले मैं दोबारा आता हूँ फिर ये चेंज नहीं नहीं, कर। कोई नहीं, आप बात करते रहे, उतनी देर आप तस्वीर भी चेंज कर लें जी, फरमाएं। अच्छा जी सर। शाह जी मैं आपको 3-4 साल से मैं लगातार सुनता हूँ, जी जी माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन जी, आमीन। तो मैं कल एक और चैनल था, वो भी खत्म नबूवत पर कादियानियों की करतूतें वाज़ा करता है लोगों को। तो वहाँ एक लड़का था, पता नहीं कौन था, मैं नहीं जानता, उसने जिक्र किया था जी चुविंडा में बहुत ज्यादा कादियानी हो गए हैं, तो ये हो गया तो वो हो गया। तो वहाँ एक्चुअली मसला ये था, पहले वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, मैं अभी सऊदी अरब में हूँ, तकरीबन मेरी उम्र 43 साल है। वहाँ ये कादियानियों ने पूरे बाजारों में अपना होल्ड किया हुआ है, मार्केटें इनकी हैं, किराने की दुकानें इनकी हैं, इलेक्ट्रिकल की दुकानें इनकी हैं, चावलों के सेलर वगैरह इनके हैं। तो आसपास के जो गांव थे वहाँ गरीब लोग, किसान लोग, अनपढ़ लोग, जी जी जी, वो इनसे लेके आते थे सौदा वगैरह बाजारों से, और फसलों की कटाई पर उधार करके आते थे। ठीक है, और जो फसल कटती थी वो बाद में इनको जाके फसल देते थे, और जो पैसे वो यानी कि जो भी इनसे उधार वगैरह लेके खाया होता था वो पैसे कटवा देते थे, और फिर भी इनके ऊपर पैसे बच जाते थे कादियानियों को देने वाले। तो इन मामलात में वो लोग जो है नहीं समझ सके कि हाँ हमें किस जाल में फंसाया हुआ है, और जो गरीब लोग थे तो वो अपने हालात बदलने के लिए इनकी बातों में आ जाते थे, और वो जी ये एक चाल खेलते थे जी, रहना तो वही कुछ है, सब कुछ बस हम आपके बेटे को जर्मनी भेज देते हैं तो आपके हालात भी बदल जाएंगे, बस एक छोटा सा जो है, बस आप छोटा सा स्टेटमेंट वहाँ दे दीजिएगा तो आपके हालात भी बदल जाएंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। ये मामलात होते रहे हैं, और बाजारों में ये लोग खुद बैठे हुए हैं, आज तक बैठे हुए हैं, और जो गिरदोनवा के गांव के लोग हैं, पास पास जितने गांव लगते हैं, जो चुविंडा में मजदूरी करने के लिए आते हैं लोग,
इनके घरों में औरतें अकेली होती हैं, लड़कियां वगैरह होती हैं, खुद तो ये दुकानों पे बैठे होते हैं। तो नहीं, वहां के जो मुसलमान है शाह जी उनको भाई पता की अगली बात तो पूरी सुनने दें शाह जी। जी जी भाई जी बोलें आप। ये खुद तो मार्केटों में बैठे होते हैं और वो लड़कियां और औरतें घरों में होती हैं। कोई रंग करने वाला है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, या कोई मिस्त्री मजदूर है। वो लोगों को ये हायर करके तो अपने घरों में भेजते हैं, जी काम करें जाके, कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म, और वो जो मजदूरी करने वाले लोग हैं या कोई भी काम करने वाले लोग हैं, वो कितने पढ़े लिखे होते हैं, कितना उनको दीन का पता होता है, कितनी उनकी एजुकेशन होती है, कुछ पता नहीं होता है। जो 8-9 क्लास पढ़ा हुआ है मदरसे में, पढ़ नहीं, नाजरा कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ किसी ने, उसको क्या पता है कि ये क्या प्रोपेगेंडा करते हैं घरों में बुला के। फिर वो इनकी लड़कियों की बातों में आ जाना, ठीक है। उन्होंने लड़कियों ने हंस हंस के बातें करनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जी आना जाना हो गया, एक दूसरे के घर में आना जाना हो गया, ठीक है। वो लड़कियां ऑफर होनी शुरू हो गई, फ्रिज एसी जा रहे हैं, ठीक है। ये मामलातों की वजह से वो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी वो चीज नहीं है। आप खास चमिंडे के हैं या किसी गांव के करीबी किसी गांव के हैं? शाह जी मैं एक आपको बात बताऊं, मैं खास चिवंडे का, ठीक है। अच्छा। लेकिन वहाँ अक्सरियत इन लोगों की है और होल्ड है इन लोगों का। काशिफ भाई, मैं आपको बताऊं कि चविंडे के पास ही वजीद वाली मैं जानते जानता होंगे हूँ आप, वजीद वाली को, छोटी वजीद वाली और बड़ी वजीद वाली तो बड़ी होगी। वजीद वाली, जी और बसरा हाँ जी, बसरा को भी जानते होंगे, बसरा। बसरा भी जानता हूँ मैं। जी जी, ठीक हो गया। तो मैं तो चविंडे की रग रग से वाकिफ हूँ, मैं तो वहां 4-5 साल रहा हूँ। कौन से दौर में शाह जी बताइए? मैं तकरीबन कोई 7 साल पहले, लगभग 7 साल पहले 7 साल पहले। चले ठीक वजीद। है, मेरी बात शाह जी मेरी बात सुने। अच्छा सुने, एक मेरी अगली कहानी तो अब मैं आपको बताता हूँ ना। जी 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 शाह जी बोलिए। यहाँ पे आपके चविंडे के हालात मुझसे कोई पोशीदा नहीं है, यहाँ आप लोगों का ज्यादा कसूर है। बड़ी माजरत के बिल्कुल साथ मैं बिल्कुल, आपको शामिल करता हूँ। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि हमारा कसूर है। मैं आगे जो बात करने वाला था ना, मैं उसमें मैं मैं आपको मैं बताऊंगा कि आपको चिमंडे चले के मैं लोगों का बताता हूँ ना, कितना बड़ा कसूर है। अगली कहानियां तो मैं बताता हूँ ना जी। जी जी चविंडे की सरजमीन में सबसे पहली मेरी यानी मेरी मालूमात के मुताबिक चविंडा की सरजमीन में सबसे पहली खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस मैंने करवाई थी। यानी मुझे लोग ठीक है, कहते थे कि भाई इस किस्म की, इस नोयत की पहले कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। समझ आई कि ठीक नहीं? है। अच्छा जी। जी जी गुजारिश ये है कि वहां के लोगों को पता ही कख नहीं। उनको जनाब, उनको हम कह के मर गए भाई, ये तुम जिन लोगों को तुमने गोद के अंदर बिठाया हुआ है, ये देखो उनका अकायदो नजरियात क्या हैं। वो तो कलमा वो कहते हैं जी, मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी को लेते हैं, अल्लाह से मुराद मिर्जे को लेते हैं। मिर्जा कहता है अल्लाह भी मैं हूँ, मोहम्मद भी मैं हूँ, ये कुरान मेरे ऊपर नाजल हुआ है। अच्छा, ये सब कुछ ये 4-5 साल लगभग ये स्ट्रगल के बाद भी समझ लें कि जी नताइज जी। जीरो रहे हैं, नताइज जीरो। वो जीरो इसीलिए रहे ना कि वहां इनका बहुत ज्यादा होल्ड है। वो मैं जो बात करने आप जो बातें बता रहे हैं काशिफ भाई, एक मिनट काशिफ भाई, जो आप जी जी बता रहे हैं बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि मतलब जहनी गुलाम मुसलमान हो गया है। मुसलमानों के ऊपर हुकूमत जो कर रहा है वो कादियानी मर्जई कर रहा है। और शाह हत्ता जी के एक मिनट, जनाब बड़े आपकी बड़े मैं बात, एमपीए, बड़े बड़े एमएनए, बड़े बड़े जनाब ओहदादारान, बड़े बड़े वडेरे चौधरी और इस टाइप के जो लोग हैं, हाँ जी, तो शाह जनाब जी मैं, जी शाह जी एक बात, माजरत आपकी मैं बात काटता हूँ, एक बात सुनिए, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि हमारे एक टीचर थे, आज से तकरीबन मैं आपको 92-93 की बात करने लगा हूँ। 1992-93 की बात है तकरीबन।
उससे भी थोड़ी वो 1-2 साल, मुझे सन का सही तरीका से याद नहीं है। स्कूल है, डीसी स्कूल कहते हैं, डीसी हाई स्कूल चिविंडा, अंजमन मस्जिद के सामने। हाँ बिल्कुल सामने जो है। ठीक है, वहाँ एक टीचर होते थे अमीन पट्टी साहब। अच्छा। उनके बेटे ने और उन लोगों ने मिलके मरज़इयों के खिलाफ बोलना शुरू किया। अच्छा। और ये चिविंडा के लोग हो सकता है सुनते भी हों यहाँ बैठ के नीचे, और मैं उन लोगों की, मैं इससे कोई लेना देना नहीं, आप बात कीजिए। मैं उन लोगों की बगैरती समझता हूँ। उन मरज़इयों ने वो पट्टी साहब के बेटे को जो है उन पर तशद्दद किया, और अंजमन मस्जिद जो पूरे इलाके की जामिया मस्जिद है, मशहूर मस्जिद है, जामिया मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। ये वही मस्जिद है कि वो शाह साहब अपने क्या नाम है, उसामा क्या नाम है शाह साहब, बुखारी साहब, उसामा चला गया है, उसामा कितने टूट गए। और यार शाह साहब का नाम एक मिनट, अभी तो मैं तकरीबन 18-19 साल से बाहर ही हूँ, मुझे नहीं पता कौन है वहाँ कारी साहब, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ आगे। अच्छा चलें। उसी अंजुमन मस्जिद के मीनारों पर, दरवाजों पे, दीवारों पे इन कादियानियों ने फायरिंग की थी, क्लेशनकोफों से शहीद किया था उसको। किसी भी तारीख वाले बंदे से, पुराने बंदे से पूछ ले चिविंडे से, या इर्द गिर्द के किसी गांव वाले से पूछ लो जो पुराने बंदे हैं। बिल्कुल मैं जानता हूँ जनाब, मैं जानता हूँ इनकी दहशत गर्दियों को जानता हूँ, इनके सब कुछ मैं जानता हूँ। बड़ी बड़ी अभी भी हालिया इन्होंने एक दहशत गर्दी की है शेखुपुरा के अंदर। ऊपर दहशत गर्दी के बाद इन्होंने जनाब वहां फायरिंग की, सोटे मारे और उल्टा मुकदमे भी कटवाए शाह जी वो। और उसके बाद ये चिविंडा के और इर्द गिर्द के जो लोग इन लोगों के गुलाम है ना, कादियानियों के बने हुए, उनकी गैरत देखो कि कोई आगे नहीं हुआ। और जो भट्टी साहब थे उनका घर खराब कर दिया। उनका बेटा तकरीबन अभी मेरे ख्याल से 25-30 साल हो गया है, जर्मनी में या इटली में गया हुआ है, और आज तक हमारी हुकूमत के, कोई भी हुकूमत आती है, सीआईडी वाले भट्टी साहब के घर में आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इनने दहशतगर्दी का केस कराया हुआ है। आज तक उनकी इंक्वायरी चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो मस्जिद का नाम आपने लिया था, मैं अपने सामीन को थोड़ा सा बताता चलूं कि ये वो वाहिद मस्जिद है, अंजुमन मस्जिद के अताउल्लाह शाह बुखारी साहब जो थे, ये सबसे पहले समझ लेके ये गए थे, और खत्म नबूवत की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस इसी मस्जिद में हुई थी। और ये वो यानी एक तारीखी मस्जिद है, बड़ी पुरानी मस्जिद है। और जी, और जो चिविंडा के 2 स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, एक इस्लामिया स्कूल है, दोनों अंजुमन मस्जिद के दरवाजे में हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और इन दोनों स्कूलों के जो हाई स्कूलों के जो टीचर होते हैं ना, वो बहुत यानी कि अमीर आदमी कहलाते हैं, ग्रेड उनके ज्यादा होते हैं। वो जो हैं इर्द गिर्द के गांवों के लोग थे, कोई किसी गांव का चौधरी था, कोई किसी गांव का चौधरी था, वो सब आते थे यहाँ पढ़ाने के लिए, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ये मर्दइयों के सामने बोल चढ़े। इतने तो गुलामी इन्होंने करते हैं ना मर्दइयों की वो लोग। शाह जी प्लीज जरा प्राइवेट मैसेज भी पढ़ लें जी। प्राइवेट मैसेज शाह जी अस्सलाम वालेकुम। शाह जी नीचे मुबारक अहमद है, उसको लाइन पे लें। वो भाई हम देखें, हमने लिंक शेयर कर रहे हैं, अगर कोई मुबारक हो तो वो ना आए तो अब क्या करें। खैर मुबारक की हम कह सकते हो, क्या कर सकते हैं। ये लोग फिर नीचे बैठ के ना सिर्फ फूके मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। टिप भी कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हम तो बुला ही सकते हैं। एक्चुअली ये पहले भी वो आका का गुलाम चैनल पे आया था, और उसने कहा प्रूफ चाहिए हमें, प्रूफ। तो आ जाओ, आपको आज किताबें खोल, आप मिर्जे की किताब खोल के आपको हवाले दे देते हैं। हाँ तो आ जाओ भाई, मुनाजरा कर लो यार। ये आपको कोई गाली वाली नहीं देगा, कोई गाली शाली नहीं होगी, बल्कि आप अगर चाहेंगे तो 1 to 1 आप और मैं होंगे, बस तीजा बंदा कुछ नहीं होगा। आ जाए। ये मोहसिन कादरी साहब आए हैं कोई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जी। फरमाइए जी। जी शाह साहब, मैं काफ़ी देर से ही आपका स्ट्रीम देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और डेली देखते हैं। और पहले तो आपको बहुत मुबारक, आपने वो जो कुत्तों की लड़ाई 2-3 दिन रखी है ना, तो
पूरे दिन हम लोग हंसते रहें और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते रहें। और दूसरी बात, मैं इसलिए ऑनलाइन हुआ हूँ आपके साथ स्ट्रीम में, ये जो मुबारक साहब हैं कोई, वो क्या क्या मैसेज किए जा रहे हैं सर जी, उनको तो थोड़ा सा सर जी उन्होंने ले लो तो नहीं नहीं, कर इनको दीजिए यार। करने दे, मैसेज करने दे, मैसेज करने दे, मैसेज का कोई नहीं। मिर्जा जी भी तो टिप टिप ही करते रहे पूरी जिंदगी। हाँ जी, वो बड़े मिर्जा जी और छोटे मिर्जा जी भी आजकल यही कर रहे हैं, टिप टिप, अपनी बस हांके जाओ, अगले बंदे की सुनो ही ना है। तो लख कोई मुनाजरों के लिए बुलाए, नहीं सामने नहीं आना है। और बे यार सामने आओ, बात करो जो है। हाँ जी, मिर्जा गुलाम कादियानी, अब वो देखें वो रगड़ा लगाया है आके, वो आजकल जितने भी ये झूठे कज़ाब जिन कुत्तों की बात ये कर रहे थे, वो जनाब वो सारे कुतिया कुतिया कर रहे हैं मिर्जा कादियानी। मतलब मिर्जा कादियानी कहता था कि मेरे बाद 10,000 मसीले मसीह आएंगे, नबी आएंगे, रसूल आएंगे। तो भाई जाहिद खान कह रहा है, वो रोला डाल रहा है, मुझे मानो। मरज़इयो मानते क्यों नहीं हो? तो मनो ना फिर, तुहाडे मिर्जे ने क्या सी कि मनिया जे है, मानो। अच्छा, ये आए हैं एक नवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज साहब चले गए हैं, तो मानो फिर वो मदूद को भी मानो, वो तो रोला डाल रहा है, वो कह रहा मानो। या मिर्जे नू लानत पाओ, जे इन्हां दे लानत पानी जे ते फिर मिर्जे ते भी तुहानू लानत पानी पैनी है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੇ ਆ ना, ਸਾਡੇ नजदीक ते दरवाजा बंद हो गया नबूवत का, हमारे नजदीक तो नबूवत का दरवाजा बंद, तो तुम लोगों के नजदीक तो खुले हैं ना दरवाजे, तो मानो फिर इनको मानते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारे मिर्जे ने दरवाजा खोला है, वो कहता था, तो सामने आके बात भी तो करो ना कम अज कम। जब फंस जाते हो तो फिर बंदरों की तरह वो लुक छुप जाते हो दरख्तों के अंदर। सामने आके बात, मरज़इयो अजीब मखलूक है, मरज़इयत अजीब गंद का नाम है। ये चविंडे की सरजमीन का कोई कादियानी नहीं। आओ सही सामने मरने हो, गलते करो ना साडे नाल कोई बड़े शाह जी मेरे ना सर, शाह जी एक गल कटा ਤੁਹਾਡੀ मैं माजरत नाल, मेरे नाल 6 साल पहले वाकया हो गया कि मैं सऊदी अरब च गया तो मेरा वीजा ਜਿਹੜਾ ना किसी वजह नाल खराब हो गया। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਵਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਭਜਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਈਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਸੰਦ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਤਲਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ठीक है ए तायरे लाहौती, उस रिज़्क से मौत अच्छी आती हो जिस रिज़्क से परवाज़ में कोताही, हमें वो चाहिए नहीं माशाअल्लाह। भी नहीं मैं हालांकि ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਮਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਉਮਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। हाय हाय हाय, वो देखें वो जो आपको वो टिकट दे रहा था, उसने तो पेशगोई की थी, मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में, और उसको मक्का मदीना देखना तक नसीब नहीं हुआ, लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करते मर गया लैट्रीन के अंदर। अल्लाह करे, देखो जी अल्लाह करे जी कोई कादियानी जेड़ा ना ऐस
ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ना भूले। अरे वाह 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 वाह। मैं कहता हूँ खुदा की कसम जो एक दफा मुसलमान मदीने हो आता है ना, अल्लाह हाँ सबको जी। दिखाए, ओए होए हो वाकई जन्नत है। खुदा की कसम जमीन के ऊपर अगर कोई जन्नत है तो वो मदीना है। ਯਕੀਨ मेरे ਕਰੋ बाबा ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ हाय ਬਹੁਤ हाय ਸ਼ਹਿਰ हाय ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ हाय ਦੇ ਵਿੱਚ हाय ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤਵਾਫ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਵੋ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ। वाह 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 वाह, क्या ही बात है यार, क्या ही बात कि है। रस्ते मैं 'ਚ कहता खाना खा हूँ लांगे मैं ਤੇ ਜਿੰਨੀ कहता हूँ ਜल्दी कि ਹੋਏ जनाब मेरे मदीने आका सल्लल्लाहु ਜਿਹੜਾ अलैहि ਜਿਹੜੀ वसल्लम मेरे जी फरमा लें जी आप। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मदीने में मरने की दुआ करो, ओ कमा काल अलैहिस्सलाम। जी आए जी हाय मदीना जी, मदीना। वो हजरत इमाम मालिक ने पूरी जिंदगी मदीने के अंदर गुजार दी। जब जब हज का वक्त आता था लोग कहते थे जी हजरत जी आपने हज करने नहीं जाना, तो आप फरमाते थे कि एक हज फर्ज था वो मैं कर रहे हूँ, अब मुझे डर है कि मैं मदीने से निकलूं तो मेरी अजल आ जाए तो मैं कहीं मदीने से बाहर ना फौत हो जाऊं। तो माशाल्लाह पूरी जिंदगी ना मदीने में गुजार दी। ते आखिर वो जन्नत यकीन के अंदर मदफन मिला आपको। तो ये थे यकीन हमारे करो बाबे। शाह जी यकीन करो कि किसी परदेसी से पूछ लो कि उसको अपने घर की याद सताती है कि नहीं सताती हर वक्त, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ कि जब मदीने में कदम पड़ गया ना तो वहां से निकलने का दिल ही नहीं किया और किसी वाह चीज की वाह याद वाह ही नहीं आई। हाय 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 हाय, वाह मदीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच्ची बात है जी, सच्ची बात है। मैं कहता हूँ कि बस इतना मेरा दिल करता है मैं उड़ के चला जाऊं, खुदा की कसम। मैं माशाल्लाह जब माशाल्लाह। पहली दफा गया था तो मेरा दिल यही था कि मैं उधर ही रहूंगा। हत्ता कि फिर मैंने ना जनाब पूरा पूरा वो कहते ना एड़ी चोटी का मैंने जोर लगा दिया, और पैसे का भी मैंने का परवाह नहीं करनी। जितना एजेंट को कहा पैसा ले लो मुझे यहाँ सेटल करो, मैंने मदीने में सेटल होना है किसी भी तरीके माशाल्लाह पर। मैंने वहां से निकलनी नहीं, लेकिन नहीं बस माशाल्लाह। मंजूरी, बस वो सरकार की इजाजत नहीं बस, या तो बस जो भी मुझे मंजूर। मैं वहां से ये अर्ज करके आया कि सरकार मैं मेरी ड्यूटी आप जहां भी लगाएंगे हम उधर रह के काम करने को तैयार हैं, क्योंकि ड्यूटी आप माशाल्लाह आका है हमारे, तो आप जब भेजें तो हम गुलाम कैसे रुक सकते हैं। लेकिन एक आप माशाल्लाह। मेहरबानी करें कि हर साल जो है ना इस हाजत को जरा हाजिरी हाँ हाजिरी शर्त नसीब कि फरमाए। बस इतना ही मेरे लिए माशाल्लाह। काफी होगा, और जो मेरा मरना हो वो बकी में हो, मदीने में हो, और बकी मदफन मिले। अच्छा अब तो जनाब जब से ये कोरोना की वो आफत और एक समझ ले कि वो इम्तहान आया हुआ है, तो मशीयत इलाही है, वो अल्लाह को पता है क्या मामलात हैं। तो बस जी दिल जी इतना उदास है, दिल करता है कि कब ये पाबंदियां उठे हैं। मैं जनाब सब कुछ अपना वेच वट के ना मैं मदीने जावा हाजरी देना, लेकिन बस की करिए जनाब, की कर सकते। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, माशाल्लाह करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बड़ी बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। अल्लाह 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 अल्लाह। बस यही है जी, यही है जी, यही मदीना ही है। और हमारे गुनाहगारों के पास है कुछ और क्या है, हमारे पास क्या है अजी? या तो अल्लाह की मोहब्बत है, तो या मखलूक में से सिर्फ उसके महबूब से मोहब्बत है। हाँ जी, तो बस यही है, और तो हमारे पास है ही कख नहीं। तो
बात कहाँ से निकली कहाँ पहुंची, बहरहाल यही है कि मर्जियों को इतनी बातें नहीं समझ आती। और मिर्जा कादियानी कहता है मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में, उस बेचारे को, उस फालतू इंसान को मक्का मदीना देखना तक नसीब नहीं हुआ, और तुम कहते हो ये बड़ी रूहानी मौत थी। बड़ा रूहानियत, इसमें रूहानियत कौन थी है भाई? है वो मर गया लाहौर के अंदर टट्टियां मूत्र करते हुए, मदीना मक्का तो देखना नसीब तक नहीं हुआ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा लेकिन मदीने की हदूद के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। है तो तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, जाहिल हो तुम, उसको कहते हो बड़ी रूहानी, ये रूहानी बातें हैं, मौलवियों की समझ में आने वाली नहीं, पागल हो, तुम्हारी मतें बच गई हैं। अच्छा जी, तकरीम को मैंने इख्तिताम की तरफ भी लेके जाना है। असद गुज्जर साहब नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मुर्शद, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह सोने का बड़ा फजल है जी, एहसान है। शाह जी, मेरा एक रूहानी सवाल था। जी जी, ये किताब है शाह जी शैतानी खजाइन जिल्द 13। यहाँ पर हजूर मिर्जा साहब अपनी जमात को नसीहत करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों की बादशाहत को अपने उलिल अम्र में दाखिल करो। तो शाह जी इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। ये मर्जी तो कहते हैं कि हजूर मिर्जा साहब ने हमें ऐन इस्लाम के मुताबिक तालीमात दी हैं और कुरान और हदीस के मुताबिक, तो ये फिर मतलब अंग्रेजों का कहाँ से मामला आ गया? जज़ाकल्लाह। भाई वो असद भाई, यही तो रूहानी बातें, तो मिर्जा जी तो फरमाते हैं कि ये मैं अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा हूँ। वो खुद फरमाते हैं, वो कहते हैं मैं अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा हूँ। हाँ, ये रूहानी बातें हैं असल में, ये सब रूहानी बातें हैं जनाब। ये टट्टी मूत्र करना भी तो रूहानी बात ही थी, बड़ी जनाब, दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र। आप किसी की कादियानी मर्जी से बात करके देखिए इस मौजू पर, ये मेरे अल्फाज वो दोहराए ना तो आप मुझे कहना कि भाई तुम झूठ बोलते हो। वो मिर्जा गुलाम कादियानी को इस चीज तक को वो कहते हैं ये रूहानी बातें हैं, यानी 100 दफा टट्टी मूत्र वो करता था, बड़ी रूहानी बात है। हत्ता के मिर्जा गुलाम कादियानी ने, मैं अपने पिछले चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू कर चुका हूं, अब तो वो डिलीट हो गया, खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, नए सिरे से दोबारा हम शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं। तो उसमें मैंने हवाला भी दिया था कि मिर्जा कहता है ये मेरा निशान है। वो निशान क्या है? दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र करना। कहता है ये मेरा मोइज है। यार अकल वज गई है इन्हां दी, मरज़ियां दी, इन्हां दी अकल केड़ी घास चरने गई हुई है इनकी अकल? वो कौन सी बदबला के ऊपर तुम ईमान लेके आए हो पागलो? ऊपर से कहते हैं, जब ये सच्ची इनको सुनाए ना, कहते हैं ये मौलवी बंदर सुबर खंजीर आसमान के नीचे बदतरीन। लो जी, बस तोतों की तरह रटी हुई है एक चीज। तोते नहीं होते जैसे तोतों को रटा दिया जाता है, अलफनार ते बेबकरी ते तख्ती, बस ये तोतों की तरह रट्टा लगाया हुआ है, अन्ने वाह। हाँ जी, तो अजीब सी मखलूक है कादियानियत मर्ज़ियत, यानी जहां पर अकल को उचक लिया जाए तो वहां पे कादियानी होता है, वहां पे अहमदी होता है। ठीक है जी, जहां पे अकल का इख्तिताम होता है वहां से कादियानियत की इब्तिदा होती है, अहमदियत की इब्तिदा होती है। जहां अकल नहीं वहां कादियानी आपको लाजमी मिलेगा। अजीब सी मखलूक है यार, अजीब वो गरीब किस्म की। वो देखे गैर महरम औरतें उसके पास रहती हैं, टांगे दबाती हैं, मसाज करती हैं, उसके पैरे देती हैं, उनकी वो चुन्नियां जनाब लटकवा देता है और जनाब उसके सामने नंगी हो जाती हैं। हम मर्जियों को जब हवाले दिखाते हैं ना तो मर्जी ढिले मुंह नाल कह देगा ये रूहानी बात है, मौलवियों की समझ में आने वाली नहीं है ना, मौलवियों नहीं समझ होनी है। और लख दी लाना होता तेरी अकल ते मर्जिया मर जाओ तुसां केड़ी जिन्स दी तुसीं घाह चरदे हो। काशफ चौधरी जी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मरने बोलदा क्यों नहीं हो तू? वो दस दे यार। मैं उस्ताद जी खामोश होके सुनदा पिया ना।
ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੁੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਵਾ। ਆਏ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਅਜੀਬ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਟਾਨਾ ਕੁਆਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦ ਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ ਫੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਲਹਾਮੀ ਨੁਸਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੰਗ ਕੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ रूहानियत का प्याला सी। वाह यार कमाल की गल है, अजीब सा मतलब है ये तो अच्छा जब ये बातें होंगी ना तो मरज़ई पता की कहेगा, ओ छड्डो जी ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो तो मरज़इयत आप ही खत्म हो जाएगी। लो तो वो इस तरफ तो नहीं आते, वो इस तरफ नहीं आते। अब वही ना मतलब ये कि हम मिर्ज़े गुलाम कादियानी की करतूतों की बात कर रहे हैं। वो खुद कहता रहा है कि किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ, आंदा मैं बंदे दा पुत्र ही नहीं है। असी यह तेनू कहने पे मरज़इया कि तू साबित ते कर के वो कोई इंसान भी है सी कह ते तू आना पे ईसा को जिंदा साबित कर दो। वही तुम्हारी अक्ल है कि क्या है, तुम लोगों को चपेड़ा वजन दी लोड़ है तुहानू मरज़इयो। शाह जी मिर्जे ते एक लतीफा याद आउंडे है, मिर्जे पालिया एक तोता, रोज ਉਹਨੂੰ ਮਰਚਾਂ ਖਵਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰੀ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬੋਲ ਆਂਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਚੂਰੀ ਖਾਏਗਾ? ਤੋਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਰਚਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਯਾਰ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਓਏ ਐ ਮਰਜ਼ਈਓ ਐ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਈਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ਈਆ ਚ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। अच्छा उस्ताद मोहतरम एक चीज और है, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज और है कि इनकी जो कल्ट में बंदा रहे ना तो उसकी बड़ी वाह वाह करते रहते हैं। जैसे ही वो कल्ट से निकल जाए ना कहते हैं ये तो है ही बहुत गंदा था, ये तो बहुत गंदा बंदा था, अच्छा वो कल्ट से निकल गया। तो दसो भाई निकल गया तो वो बुरा हो गया, अंदर था तो वो बहुत अच्छा था। हम गंदे थे, हम इनकी बच्चियों को छेड़ते थे, इसलिए इन्होंने हमें निकाला है। हेलो सुन लिया जी, कार दी खबर मिल गई जी, एक्स कादियानी इजाज साहब है जी वो भी बकौल इनके हमने खुद निकाला, तो हम आपकी बच्चियां छेड़ते थे इसलिए आपने निकाला है। हम तो मानते हैं आपने ही निकाला है। चलो जी जाते जाते यार थोड़ी जी तलावत सुन जो यार, फिर मैं स्क्रीन खत्म करनी है। वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, पट्टी पट्टी गई जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, हुन असां असदा लेखां खुदा नाल जा पईयां ए, एली एली लमा समाकता नी, अनमोइल होशा नासा परेशन, तोपा 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 या तोपा पट्टी पट्टी गई। आखिरी इल्हाम आखिरी जो ये आप आखिरी लफ्ज जो आपने पढ़ा ना गलत बोले नहीं शाह जी, वो क्या नाम था उसका, वो जो बरकतें वसूल करता था, कीम नूरुद्दीन नहीं कादी यार मोहम्मद को मिर्जे ने बोला था बस टोपा 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 ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਤਲੀ ਵਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਪੱਟੀ गई। अच्छा जी चलो जी, वैसे इसके ऊपर भी मैंने पिछली स्ट्रीम में की थी। जब ये लाश आया था ना तो उसने आके कहा था वल्ला वल्ला सीधा होया अल्लाह, हाँ जी। तो जब रजूलियत की ताकत हो गई तो उसके बाद मिर्जे जी ने कहा हाय पट्टी पट्टी गई। तो ये उस्ताद मोहतरम इसके हवाले मिल सकते हैं क्योंकि बड़ी जरूरत थी, किसी को दिखाने थे। ये जी तज़किरा का ओरिजिनल सफ़ा लगाया है, ये तज़किरा किताब के बिल्कुल आखिर में फहरिस्त है और फहरिस्त का सफ़ा नंबर 118 है और ये बिल्कुल ओरिजिनल मरज़इयों की किताब का ये सफ़ा है। और यानी तज़किरा के किताब के ये देखे पट्टी पट्टी गई, ये जो वही है ये 681 नंबर सफ़े के ऊपर है। अच्छा हाँ आप एक मिनट चलें रुक जाएं, हम अभी स्ट्रीम खत्म नहीं करते,
आप उतनी देर कोई बात कर लें तो मैं आपको सारे हवाले निकाल के दिखाता हूँ। जी उस्ताद मोहतरम शाह जी तलावत करी थोड़ी जी गामे दे बारे गामे दे बारे करो जी करो। ए ना इधर मीर हमजा जी जी उस्ताद मोहतरम ओ वहियां ते याद ही नहीं ना, सारियां वहियां पढ़ के करी सुना दे फिर। चल शुरू हो जा। उस्ताद मोहतरम वही अभी दी देन च एक हो रही गामे नु सी लगियां 100 बीमारियां ताइयों सी हकीम नूरुद्दीन नाल ही आ रहीयां। चल 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 फिर चल तरन्नुम च जरा थोड़ी जी तरन्नुम च गामे नु सी लगियां 100 बीमारियां ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ 100 बीमारियां ताइयों सी हकीम नूरुद्दीन नाल यारियां सब कोलों पैड़ा इनू लगा सी ओ मर्ज हर 3 मिनट बाद मूतना सी फर्ज सब कोलों पैड़ा इनू लगा सी ओ मर्ज हर 3 मिनट बाद मूतना सी फर्ज दिन विच 100 वार जांदा सी लैटरीन दिन विच 100 वार जांदा ए लैटरीन सी ओ बंदा ये है। चलो जी तज़किरा का ये देखें जी, ये सफ़ा पट्टी पट्टी गई, ये 681 सफ़ा है। तो ये तज़किरा मैंने ये ओपन कर ली है, एक मिनट ये तज़किरा का ये ओरिजिनल सफ़ा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये है और PDF ये है जनाब। अच्छा इसके सफ़ा नंबर 681 के ऊपर हम जाते हैं। 681 एंटर। ओहो ये सफ़े तो ये देखें 600 ये 681 आ गया ना। अब एक हवाला भी अगर मिल जाए तो बकाया आप समझ जाइएगा कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये पट्टी के ये पट्टी नजर आ गई है। ये पट्टी गई। एक दफ़ा मसीह मूतर अलैहि शलवार ने ये इल्हाम सुना कि पट्टी गई। हाँ जी मकतूब पीर सराजुल हक नुमानी, ये सफ़ा नंबर ये 681, ये वो ही है जो इधर लिखा हुआ है 681। चलो ये भी वल्ला वल्ला सीधा होया उल्ला, ये भी देख ले 631। ये 631 ये है। वल्ला वल्ला सिद्धा होया अल्लाह आज हमारी बख्त बेदारी। और आगे तिलावत यार चल मैं ही सुनाता हूँ यार आप लोगों को। ये बल्कि तिलावत सुनाने के लिए आपको फहरिस्त ना मैं दिखाऊं। हाँ फहरिस्त से तिलावत सही मज़े की पता चलेगी। आइए ये है भाई वो फहरिस्त। आगे उर्दू वाले इल्हाम निकाल लेते हैं। ये सारे ना अरबी वाले इल्हाम है मिर्जे की भैया। चलो जी ये फारसी इल्हाम आ गए हैं। अच्छा फारसी के बाद ये उर्दू। अब सही मजा आएगा। आबे जिंदगी खून से मुर्दों को कोहस्तान के आबे रवां नालियां खून की चलेंगी। जैसे आबे रवां आपकी तलाश में एक शख्स बाजार में फिर रहा है। आपके साथ अंग्रेज़ों का नरमी के साथ हाथ था। आपके लड़का पैदा हुआ। मेरे ख्याल में ये आपकी तवज्जो का असर है। बादशाह वक्त पर जो तीर चलावे उसी तीर से वो आप मारा जावे। आतिशा फिशां आसार और तेरे आसार में बरकत दूंगा। आसार जिंदगी आसार सेहत। आज बारिश भी होगी। आज तुम अरबी में तकरीर करो तुम्हें कुव्वत दी गई। आज हाजी अरबाब बद लश्कर खार के करावती का रुपया आता है। आज से ये शर्फ दिखाएंगे कि हम आज मुबारक दिन है। आज हमारी बख्त बेदारी। आज हमारे घर में पैगंबर आए और आगे इज्जत और सलामती। आजकल कोई निशान ज़ाहिर होगा।
آخر توحید کی فتح ہے, آخر گھڑی ہماری آخری گھڑی ہے. آریوں کا بادشاہ آیا, آسمان ایک مٹھی بھر رہ گیا. آسمان پر دیکھنے والوں کو ایک رائی کے برابر غم نہیں ہوتا. آسمان سے بہت دودھ اترا ہے, مفعود رکھلا ہے بھائی. چلو یہ بس اتنی بہت ہے. وما علینا الا البلاغ. اچھا جی, بہت شکریہ جی. سٹریم ختم کرتے ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ 24 منٹ کی یہ سٹریم ہو گئی ہے. یہاں پر میں اعلان کرتا چلوں جاتے جاتے کہ انشاءاللہ عز و جل آنے والے دنوں کے اندر ختم نبوت فورم جو ہے 24 گھنٹے لائیو رہا کرے گا. 24 گھنٹے ہم سٹریمیں بانٹ رہے ہیں. مختلف سکالرز, علماء, پروفیسرز, ڈاکٹرز اور سب آئیں گے انشاءاللہ. گھنٹے کی سٹریم ہوگی اور میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں, اور 24 گھنٹے کی بنیاد کے اوپر ہمارے چینل کے اوپر آپ کو لائیو سٹریم ملے گی. یہاں پر رد الہادیت ملے گا, رد عیسائیت ملے گا, رد یہودیت ملے گا, رد جناب قادیانیت, مرزیت, رد منکرین حدیث, اور جتنی یہ بد بنائے ہیں نا آج کل کی اسلام مخالف لوگ, ان کے اوپر یہ سٹریمز آپ کو ملیں گی. بڑا مزہ آنے والا ہے آپ کو انشاءاللہ. شاہ جی ہوں لڑائی نہیں کرنی نہیں کتیاں دی لڑائی تے وہ جناب میں نے کرانی ہے, اسے کم واسطے تے بیٹھے ہیں, اور کی کرنا ہے ایسا. اچھا جی, چینل کو سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے. دعا کو رہیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.